Okay, Janab. Assalamu alaikum. This is our 29th session, and inshallah, actually, fourth last class where the new content would be covered. So, inshallah, this is the second last week actually of your semester. You must be exhausted and in all this pandemic. But we are almost there. So, inshallah, ताला, हम ये आखिरी 2 weeks को भी सही तरीके से पास ऑन कर लेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन on the waves which make an angle with respect to horizontal or vertical, whatever you want to say. And we look over it that the k vector, which is same as a propagation vector or gamma, it actually will have some sort of direction related with it, which is same as a pointing vector, and we could resolve these k vector into components. इसको हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये कुछ प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट थे। अब वी मूव ऑन टुडे to our next topic, which is the uh, oblique incidence, ठीक है, of plane waves, oblique incidence of uh, plane waves. That's what we're gonna discuss today. अच्छा, इसके अंदर what we gonna do is that basically we are going to assume that we have an interface, right? Interface means ke this is the medium one. This is medium. थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको, एक सेकेंड. So state the color. So this is the interface. This is the medium one. Well, medium one means same as mu1, epsilon1, sigma1, and you have the medium 2 and mu2, sigma2, and epsilon2. The medium is there, ठीक है. अब previously हमने क्या देखा हुआ था? We looked over the normal incidence. Let's say अगर ये medium है, so let's call that, यानी कि ये medium 1, ये medium 2, तो normal to this medium is ये मेरी dotted line है, ठीक है. And previously what we have seen is that the wave is hitting along a normal. Now we're going to change that. We're going to say that what if the wave is, the plane wave is making an angle theta I with the normal, और हमारा जो reference होगा normal का, जो angle होगा incidence का, that will be with respect to the normal. That will be our standard. Now our question is, if there is an obliquely wave which is hitting at an angle at an interface, the two media, what would be the transmission and what would be the reflection? Basically, we will be looking over those reflection coefficients and those transmission coefficients, but for the uh, angled propagating beam. Okay, so there will be a transmission, कुछ transmission होगी इसके अंदर, and कुछ इसके अंदर reflection होगी. And don't worry, ये भी कहाँ से क्या इनके angles होंगे, we gonna all figure that out. ठीक है, and that is basically your K incidence I. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सेटअप कर लेते हैं. Let's call that as x, let's call that as z, and let's call that as y. ठीक है, ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट हो गई x, y and z. अच्छा, अब इसके अंदर एक टेक्निकल definition है, and I'm going to define that first and then we'll talk about it कि इसका मतलब क्या है. So there is
concept known as plane of incidence. Plane of incidence. Plane of incidence means the plane that contains normal and k vector. All right, you know, that is the ki vector, incidence vector. That is the plane of incidence. It is that plane which is containing the normal and ki vector. या k vector actually कर लेते हैं, जो भी वेव का propagating k vector है. अच्छा, मुझे ये इस definition को देखते हुए, can anybody tell me what is the plane of incidence for this drawn figure which I just drew? कोई बताएगा मुझे? Definition ये है, वो plane जो कि नॉर्मल को भी कंटेन करे और के वेक्टर को भी कंटेन करे, दैट इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. कोई मुझे बताएगा क्या है प्लेन ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर? यानी इसको कंसिडर करो के आई, यू नो, दिस इज ऑब्वियसली this is the kr and this is kt, लेकिन just with respect to ki, can you tell me what is the plane of incidence? Yes, बताओ ना यार. ओके, कोई गलत आंसर ही बता दो, कम ऑन, फिर मैं पॉइंट आउट करूं किसको मैं बुलाऊं. ओके, ऑलराइट. सो एक्स जी प्लेन. कौन सी प्लेन? एक्स जी. एक्स जी प्लेन, बिल्कुल ठीक. यानी कि एक्स जी प्लेन कह लो, या ये व्हाइट बोर्ड जो मेरा है वो है प्लेन ऑफ इंसिडेंस. ऐसा ही बात है ना? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? जी सर. थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. प्लेन ऑफ इंसिडेंस जानना बड़ा जरूरी है फॉर आवर नेक्स्ट पिक्टोरियल ड्राइंग व्हिच वी गोना डू. सो लेट्स लुक ओवर इट. सो मेरे पास ये कुछ है. लेट्स से दिस इज माय इंटरफेस, राइट? और ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ठीक है? नजर आ रही है ना ये जो इमेज में, ये नहीं कि हम जो व्हाट आई एम डेमोंस्ट्रेटिंग? यस, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? यू कैन यस सी. सर. ओके, अच्छा, अब लेट्स इमेजिन दैट कि क्योंकि ये हमारा बड़ा जरूरी एक डेफिनेशन है कि जो इंसिडेंट के वेक्टर होगा वो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा. लेट्स से कि ये मेरा रेड पेन जो है इंसिडेंट है, ठीक है? अब इमेजिन करो, क्योंकि अब मेरे पास अकेला हूं, इमेजिन करो वो मेरा इंटरफेस बना हुआ है, ये ब्लू पेन मेरा नॉर्मल है और ये रेड पेन मेरा के वेक्टर है. तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस कैसा होगा? इट वुड बी दिस पेज. ठीक हो गया, राइट? और अगर ऐसे है, नॉर्मल तो वो ब्लू ही है, लेकिन ये, अच्छा चलो, नॉर्मल तो ब्लू ही है, उसी का तरह उसी तरह ही है, लेकिन ये जो के वेक्टर है वो इस तरह आ रहा है, इस नॉर्मल इस तरह लग रहा है उस इंटरफेस को. तो फिर कैसा होगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस? ये, राइट? the plane which is containing both the normal and the k vector is the plane of incidence. ठीक है, ये बात समझ आ गई. और अगर लेट्स से थोड़ा सा और मैं कर लेता हूँ, यानी कि थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूँ, यानी नॉर्मल तो वहीं खड़ा है, मैंने के वेक्टर को रोटेट करना है ना. सो ये मेरी प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगी. ठीक हो गया? किसी को इस पे कोई प्रॉब्लम तो मेरे से पूछे. सो आप रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बताया अभी? मैं रिपीट करता हूँ आपको. हाँ, मुझे अंदाजा था कि ऐसे ही होगा. तो व्हाट आई एम गोना डू, मेरे पास कुछ इमेजेस मैंने ऐसे फ्रॉम द यूट्यूब पिक किए. सो उनको मैं दिखाता हूँ आपको, और फिर मैं दोबारा अपना हैंड से जो मैंने दिखाया था दिखाता हूँ. लेट्स सी, ये नजर आ रही है ना आपको इमेज? मीडियम 1 है ऊपर, ये वाला, ठीक है? ओके, सो आई शुड बी एबल टू, oops, आई शुड बी एबल टू एडिट इट. नहीं कर सकता एडिट? अच्छा चलो, नेवर माइंड. सो ये यू कैन सी दिस पिक्चर, राइट? दिस, ये मेरा माउस कर्सर तो आप देख सकते हो ना, राइट? सो यस, यू कैन सी माय माउस कर्सर. यस सर. तो ये मीडियम 1 ये ऊपर है और ये मीडियम 2 नीचे है, और ये ब्लैक लाइन इज द नॉर्मल. ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया. फिर उसके बाद मैं जब व्हेन आई हैव द के वेक्टर, दिस इज लेट्स से ऐसे इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, दिस ग्रीन वन, और ये मेरा नॉर्मल है. तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होगी? द प्लेन ऑफ इंसिडेंस विल बिकम लाइक दिस. ठीक है, जो मैं आपको कोशिश भी कर रहा था डेमोन्स्ट्रेट करने की.
दिस वन वाज द इंटरफेस, ये नीचे जो है एक्स वाई प्लेन, एंड ये के वेक्टर है और ये नॉर्मल है, और ये जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है दोनों को कंटेन कर रही है. सो दैट्स अ प्लेन ऑफ इंसिडेंस. सो लेट मी गो बैक and let me do my demo again with you guys. So remember, ये मेरा let's say interface है page, let's say ये medium 1 है, ये medium 2 है, ठीक है, और ये उसका normal है, कि normal क्या होता है, perpendicular to that interface, ठीक है. अब इस पेज को अपने दिमाग के अंदर विजुअलाइज रखो, मैं इसको निकालने लगा, लेकिन इमेजिन करो वो पेज वहां पर मौजूद है. तो अब लेट्स से ये के वेक्टर है जो लगा है नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है. ओके, मैं पहले दिखा देता हूँ दोबारा. सो लेट्स से ये मेरा नॉर्मल था, और ये मेरा जो के वेक्टर या इंसिडेंट वेव, जो के वेक्टर वही है एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, यानी कि वेव मेरी ऐसे प्रोपेगेट होके लगी है, ठीक है. सो दिस केम एंड हिट एंड हिट दिस इंटरफेस, और ये नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल बना रही है. सो वंस दिस इज द के, एंड जो इन दोनों को कंटेन कर रही है प्लेन, वो ये है, वो ये नहीं है प्लेन. लेट्स से ये प्लेन नहीं है. This is not the plane which contains the both vector. This plane, not this one, not not this one, not this one. It has to be right containing the page which contains this both of these pens. Is the plane of incidence. अगर मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूं तो मेरी plane of incidence भी रोटेट हो जाएगी. Clear हो गया आप जमशेद? Yes, sir. All right. So we understand now plane of incidence. हमें समझ आ गई plane of incidence, ये white board है. अच्छा, अब दूसरा एक और important concept है, because जी क्वेश्चन. सर जी जी. जी सर आप एक्सप्लेन कर देंगे के वेक्टर क्या है? के वेक्टर जो है ये आपका बेसिकली, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका एक ई होगा, एक एच होगा, उनका जब मैं पॉइंटिंग वेक्टर लूंगा एस इक्वल टू ई क्रॉस एच, उसकी डायरेक्शन आएगी, करेक्ट. और Yes, के sir. जो है वो डायरेक्शन ऑफ द वेव है, और ये के वही है जो आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आखिर के अंदर, Oh, ठीक है. के एंड गैमा sir. आर द सेम एंड थिंग, लेकिन अब मैंने इसको वेक्टर कहना शुरू कर दिया है, बिकॉज दिस इज इसका डायरेक्शन एसोसिएटेड है, ठीक है. Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब अगली बात ये है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन तो मैंने आपको शो कर दी. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वेव की पोलराइजेशन मैं कैसे शो करूं, हाउ डू आई रिप्रेजेंट इट्स पोलराइजेशन, क्योंकि ये तो अब ऑब्लिक है, यू नो. हम सोचते हैं, यू नो, जैसे जैसे हम लोगों ने सोचा हुआ है कि लीनियर है. अच्छा चलो, अगर लीनियर है तो एक्स डायरेक्शन के अंदर होगी या वाई डायरेक्शन के अंदर होगी, या 45 पे होगी. लेकिन अब चक्कर ये है कि ये वेव वेक्टर ही ऑब्लिक हो गया है, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ना एक्स वाई जी, ठीक है, यानी कि वो भी एक किस्म के रोटेटेड काइंड ऑफ थिंग है. तो अब लेट्स से मैंने ये दिखाना है कि इसका पोलराइजेशन वेक्टर किधर है, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा. यू कैन, आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी, यू कैन सी दिस थिंग that there can be many ways of drawing that vector. It could be anything. It could be, for example, it could be something like this. इसमें important बात ये है कि E और K को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर कहता है, और E, H और K तीनों परपेंडिकुलर होंगे. तो अगर लेट्स से अगर मैं ये E ऐसे करता हूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग K ये है, तो आई कैन इजीली ड्रॉ H क्या होगा. या मैं कि E जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये कन्वेंशन थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, डॉट जो होता है दैट इज आउट ऑफ बोर्ड, और क्रॉस जो है इनटू बोर्ड. सो अगर मैं लेट्स से इसको डॉट कर दूं E को, ठीक है, यानी कि अंदर है पेज के, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है. तो मैं क्या पिक करूं, व्हाट डू आई डू. अच्छा, अब इसको सोचने के लिए बड़ा जरूरी है, और ये एक नई डेफिनेशन है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस मल्टीपल हो सकती हैं. सो उसको डिफाइन करने के लिए वी डिफाइन टू टर्म्स, वी कॉल transverse electric, या TE,
यहाँ एस पोलराइज्ड भी कहते हैं। एस कोई जर्मन वर्ड है, परपेंडिकुलर, आई कैन नॉट प्रोनाउंस दैट, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली वो क्या था, लेकिन यू कैन से दीज थिंग्स, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, टीई या एस पोलराइज्ड। सो टीई या और दूसरी, एंड आई एम गोना डिफाइन दैट, उसका क्या मतलब, और आपको क्लियर बात करूंगा, सो डोंट वरी दैट, आई एम जस्ट गोना राइट दीज वर्ड्स हियर ताकि मैं इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू करूं। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है, टी एम, यहाँ इसको पी पोलराइज्ड भी कहते हैं, ठीक है, पी पोलराइजेशन। अच्छा, अब चक्कर ये है कि हमारा जो गोल है, मैं आपको गोल, हम शायद इस डेफिनेशन अपने गोल को भूल गए हों, हमारा गोल ये है कि हम एक जेनेरिक ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए, आई वांट टू प्रेडिक्ट, नॉट प्रेडिक्ट, आई वांट टू डिटरमिन हाउ मच electromagnetic wave is reflecting and where, at what angle it is reflecting, and how much electromagnetic wave is being transmitted and what angle it's being transmitted. ठीक है, अब ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं, ये मेरे गोल्स हैं, डोंट फॉरगेट दोस गोल्स। सो इन गोल्स के मैं पीछे हूं, लेकिन ये थोड़ी सी जार्गन है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब पोलराइजेशन के, एज आई सेड, कुड बी various things. So अगर मैं ये करूं, let's say TE जो है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक का मतलब ये है that the electric field vector is perpendicular to the plane of incidence. ठीक है, this guy is defined as that electric field vector E is perpendicular. Okay, मैं नीचे जाता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और ड्राइंग करनी है। TE means that E is perpendicular to the plane of incidence. ठीक है, अगर TE मैं कहता हूं, अगर मैं TE को लेट्स से परपेंडिकुलर लेता हूं, मैं डॉट भी ले सकता हूं और मैं क्रॉस भी ले सकता हूं। मैं डॉट ले लेता हूं क्योंकि y के अलोंग हो जाएगा ये, तो y के अलोंग ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं अपनी आसानी के लिए इसको पॉजिटिव कर लेता हूं, ठीक है। सो ये पॉजिटिव है, TE मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, दिस इज माय EI वेक्टर, ठीक है, दैट्स माय EI वेक्टर। दूसरी पॉसिबिलिटी है T, अच्छा, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और मेरा K ये है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो H किधर होगा, कोई बताएगा मुझे जल्दी से, यानी क्वालिटेटिवली, आई एम नॉट आस्किंग एग्जैक्ट, H कहां पर लाई करेगा। Remember, S is equal to E cross H. E, K, and H, all three are perpendicular. If E is... Sir, it would be parallel to plane of incidence. Yes, absolutely, great. ये किसने बताया मुझे? Who's this? Obad, sir. Obad. So बिल्कुल, obviously, आप, okay, इसको मैं थोड़ा सा, अगर किसी की इमेजिनेशन थोड़ी सी वीक हो रही है, Remember, ये मेरा K था, ऐसे जा रहा था, ये मेरा अगर अच्छा ये मेरा, लेट्स से ये मेरा नॉर्मल था, दिस इज माय नॉर्मल, राइट। रिमेंबर, ये मेरा इंटरफेस है, इसको पेज को मैं बाहर निकालने का, मेरे हाथों से मैं इसको शो नहीं कर, हैव दिस पेज इन योर माइंड। सो ये मेरा नॉर्मल था, ठीक है, और ये मेरा रेड पेन इज माय K वेक्टर। अब प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर E क्या है, ये, यानी ये, दिस वन, राइट, परपेंडिकुलर टू दिस K वेक्टर, ठीक है। और अब मैं इस ब्लू को उठाने लगा हूं, नॉर्मल को याद रखना, ये अगर मेरा, ये जो रेड मेरा जो है, अगर आप लोगों को मेरी फिगर नहीं समझ आ रही तो हाथों में 3-4 पेन पकड़ लो और मेरे साथ वो बनाना शुरू कर दो और आपके दिमाग में बन जाएगी। आई एम नॉट श्योर हाउ यू आर परसीविंग इट इन द वीडियो। So remember, this is the K vector, this is the E field, ये दोनों परपेंडिकुलर, तीसरा किधर होगा, like this, ठीक है, और वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस बन जाती है, राइट, प्लेन ऑफ इंसिडेंस बन गई थी, याद है कि नहीं याद, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस था ये वाला पेपर, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस दिस ऑनलाइन थिंग, और एम आई मेकिंग सेंस, राइट, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई Yes, sir. ओके, ग्रेट, जबरदस्त। सो ये हो गई बात। सो अब अगर इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें? यू नो दैट E क्रॉस H, राइट। अगर मेरा थंब जो है
लेट्स से दैट, मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, अगर मेरा थंब जो है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगी, सो फिंगर्स, ये मेरा ई क्रॉस एच पॉइंटिंग टुवर्ड्स द थंब इन द डायरेक्शन। सो बिल्कुल इसको अपने बेशक करो इसको अपने साथ। सो इसका मतलब है एच जो होगा, एच वुड बी लाइक दिस। अच्छा मैं इसको कलर बदल देता हूँ एच का। एच, ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है, एच जो है वो ये होगा, एच दैट वुड बी माई एच आई। ठीक हो गया। अगर के फिक्स है, ई को मैंने फिक्स कर दिया तो एच ये निकल आएगा। ठीक है, यू कैन सी दिस थिंग कि ई मेरा बाहर है बोर्ड के, ठीक है, ये देखो ई मेरा बोर्ड के बाहर है, ठीक है, और इसको मैं ई क्रॉस एच करूंगा तो थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द wave direction. All right. So I think I'm not sure how well is going in the online thing. लेकिन मैं जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, I would recommend you grab 3-4 pens with you and try to do what I'm doing. And I hope this will make sense. ठीक है। अच्छा ये एज हो गया, ये है टीई पोलराइजेशन के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा टीएम पोलराइजेशन क्या होगी वो बाद में करेंगे हम, लेकिन एक बात आपको क्लियर है, और आई होप ये आपको क्लियर होगा, वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर अगर मैं ई की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो जो मैं ये फील्ड्स बाकी के निकालूंगा वो भी इंपैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज वेक्टर। इसका मतलब ये है टीई, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज टीई, इसके लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स in all likelihood will be different than the other polarization, than the TM polarization. TM polarization का मतलब ये है कि जो मैं बाद में करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, TM polarization का मतलब ये है कि मैं एज को ये ले लूंगा, जब मैं एज को ये ले लूंगा तो E would be in the plane of incidence, so that becomes a transverse magnetic. ठीक है, इसको we'll do it again, we'll do it different one. अच्छा अब ये बड़ी मजे की बात है, या इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम यहीं पर आते हैं। लेट मी, सो डज दैट मेक सेंस टू यू? ये आपको, ये जो तीन मैंने ड्रॉ किए हैं, ये ब्लू वन, दिस रेड वन एंड दिस वन ग्रीन वन, इफ दैट मेक्स सेंस टू यू, उसके बाद अगले सारे स्टेप्स बहुत आसान है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस की समझ आ जाए, के ई आई एंड एच आई जो मैंने ड्रॉ किए हैं ना, इफ यू अंडरस्टैंड दिस ड्रॉइंग सो फार जो मैंने की है इस साइड के ऊपर, देन नेक्स्ट स्टेप्स आर वुड बी वेरी ऑब्वियस। करेक्ट? किसी का कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ ले यहां पर। ओके, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। सो इसका मतलब ये हो गया कि आई कैन डू दिस थिंग। अच्छा अब, अच्छा एक बात भूलनी नहीं है आपने, जो वेव है that is represented by electric and magnetic fields. Electric field is a vector and इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर है, उस वेक्टर को कंप्लीटली लिखने के लिए मुझे क्या तीन चीजें चाहिए? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ। Who will tell me what three things I need for writing a vector? Yes? Magnitude, direction, and phase. Very good. So magnitude would be strength of the source जो मैं दे रहा हूँगा। जो फेस है वो कहां से आएगा? From where the face is coming from this figure, कौन सी चीज डिक्टेट करेगी फेस को? Yes? Theta. No. The medium. No. हाँ हाँ वो तो करेगी, लेकिन वेक्टर कौन सा फेस निकालेगा? Which vector will tell me the face? K. K is my phaser term. K is telling me about the phase. Yeah, assuming it's a lossless medium, ठीक है, K के अंदर अल्फा भी होगा, अगर हम एक वो लें, क्या कहते हैं, जनरल मीडियम, लेकिन अगर लॉसलेस मीडियम होगा तो K is the vector which is telling me about the phase of the wave, right? जैसे वो gamma z हम करते थे, K and gamma is same thing. और जो तीसरी direction, that is by this guy. So let's write electric field vector, incidence vector. ठीक है, ये फिगर मेरी छुप गई है ऊपर, लेकिन आई होप कि आप लोगों के ऊपर बनी हुई है। सो ई आई, विदाउट एनी इश्यू, आई शुड बी एबल टू राइट इट। ई आई उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, एंड
उसका ये जो टर्म है ई माइनस के आई डॉट आर मैं करूंगा, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ए वाई, ठीक हो गया। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल जो मैंने किया है। और सिंस ये प्लेन वेव्स हैं, और let's call that as uniform plane wave plus lossless केस, थोड़ा सा आसानी के लिए लॉसलेस केस का मतलब ये है कि सिग्मा 0 है और के जो है वो बन जाएगा 0 प्लस जे बीटा, दैट वुड बी द के, जिसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, ई आई ई माइनस जे बीटा जे बीटा आई डॉट आर टाइम्स ए वाई, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा लास्ट टाइम इसका ये जो मैंने फेस निकाला है बीटा आई डॉट आर, हाउ वी डिड दैट, what we going to do is we are going to resolve this k is, अगर ये मेरा resultant k है, let me change the color, if this is my resultant k, इसका मतलब है मेरे जो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये होगा k का और ये होगा, ठीक है, एंड दिस कंपोनेंट is, क्योंकि ये मेरा थीटा आई है, so this one is ki sin theta I and this one is ki cos theta I. क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरा बीटा आई का ये भी तो वेक्टर ही है ना ऊपर बेसिकली, सो आई कैन जो हमने लास्ट टाइम किया था, और r इज व्हाट, r इज व्हाट, r इज योर, इस प्लेन के अंदर है, किस प्लेन के अंदर है, xz प्लेन में है मेरा k, xz प्लेन में है, तो r इज सिंपली x ax प्लस z az, ठीक है। जब इनका मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा बीटा आई के दो कंपोनेंट्स का और उसका, थोड़ा सा मैं मिक्सअप तो नहीं कर रहा ऑब्वियसली लॉसलेस केस के लिए, दिस इज बीटा आई साइन थीटा आई and this is beta I cos theta I. So this vector would become actually e minus j beta I x sin theta I plus z cos theta I in the direction of ay. सो ये सिंपल, आई थिंक आपकी वो विक्टोरियल क्लास का मैंने, यानी यहाँ पे तो इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन्वोक नहीं हुई, वेक्टर डायग्राम है एंड यू कैन राइट दैट। किसी को इस इक्वेशन जो मैंने लिखी है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछे, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन बहुत सारे स्टेप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दैट, दिस रिप्रेजेंट्स योर फेज टर्म, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स योर मैग्नीट्यूड, और अगर वो लॉसलेस ना होता तो यहाँ पर वो e माइनस अल्फा भी आ जाता, लेकिन चलो अभी आसानी के लिए, और दिस रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन, ठीक है, दैट बिकम्स दिस। और अगर आप थोड़ा सा सोचो, इसको मैं इसको मैं स्क्विश कर दूं, यानी कि एंगल को 0 कर दो, तो ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो मेरे ये बीटा ये वाली जो टर्म है, दिस वन विल गोइंग टू बी 0, और ये मेरी cos थीटा भी 0 हो जाएगा, और सिंपली वही बीटा z बन जाएगा जो हमारा नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर है बात, ठीक है। सो दैट इज ई आई, अच्छा, अब अगला इसका इंपॉर्टेंट पजल है एच आई लिखना। एच आई आप लोग वो मैक्सवेल की कर्ल इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम क्योंकि विक्टोरियल लोग हैं, वी आर engineers and scientists who can look over these vector diagram very goodly. So let's try to write this hi from this vector diagram, because fundamental concept हमें पता है कि h is perpendicular. So h is perpendicular, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस वेक्टर को हमने लिखना है,
ठीक है, इस वेक्टर को लिखना है आपने। अच्छा, अब इसको लिखने के लिए जरूरी है तो थोड़ी सी इसके ऊपर हम हल्की फुल्की सी यानी कि वर्किंग क्या करनी है, इट्स ऑब्वियस थिंग, लेकिन मैं इसको पूरा आप लोगों के सामने करूंगा ताकि आप कोई भी चीज इसमें मिस ना कर जाए। अगर मैं यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, ये वाला अगर एंगल थीटा आए है तो ये वाला एंगल भी थीटा आए है, राइट? तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा आई। अब ये जो एच आए है इसको मैंने रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये क्या बन जाएंगे दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट इसका बन जाएगा ये, हेड टू टेल रूल याद रखना है कि ये रिजल्टेंट है, तो ये मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ आप देख सकते हो कि ये रिजल्टेंट है, ये क्या बन जाएगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट 90 माइनस थीटा आए है, सो दिस वुड बिकम व्हाट, एच आई कॉस थीटा आई, और इसको आप कहोगे एच आई साइन थीटा आई। ये एज का रिजॉल्व हो गया, ठीक है। सो और ये अच्छा, ये है एक्स डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि मेरी वो एक्स है लेकिन ये नेगेटिव एक्स के अंदर है। सो ये यू कैन सी दिस थिंग, उप्स, यू कैन सी दिस थिंग, क्या हो गया, वेट अ सेकेंड, okay, so you can see this thing, okay, this is in the negative x direction and this is in the positive z direction. Simple vectorial काम कर रहे हैं, all right? So once you know that, obviously यहां पर जो इस h के लिए जो r होगा, so h ये क्या है इसके मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, एंड डायरेक्शंस। सो एच आई जो है दैट वुड बिकम माइनस एच आई कॉस थीटा आई इन द ए एक्स डायरेक्शन प्लस, ठीक है, एच प्लस ऑब्वियसली एच आई साइन थीटा आई इन द एजी डायरेक्शन। ये तो हमने उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिखा। फेस इसका क्या होगा, फेस इसका क्या होगा, कौन बताएगा मुझे जल्दी से, इसका फेस क्या होगा एज का, व्हाट वुड बी द फेस फॉर द एज वेक्टर? यस, देखते हैं अभी इस अंडरस्टैंडिंग कहां पर आप लोगों की पहुंची हुई है। व्हाट वुड बी द फेस फॉर एच वेक्टर? अच्छा चलो, मैं आप लोगों से आंसर एक्सट्रैक्ट करता हूं। लेट मी हैव समवन विद मी इंटरैक्टिवली। सो कौन होगा इंटरैक्टिवली मेरे साथ? लेट्स सी, आई विल कॉल जहरा। जहरा, यू आर देयर? सो तो नहीं रही जहरा? Yes, sir, I'm here. बट सो गई थी, यू रिस्पॉन्डेड लेट, नेवर माइंड। No, sir. ऑलराइट, सो लेट्स से ये मेरी, अब ये मेरा रेड पेन जो है ना, जो लोग देख रहे हैं वो अपने साथ 3 पेन पकड़ लें, ठीक है। ये जो मेरा लेट्स से रेड पेन जो है ना, ये मेरी वेव की डायरेक्शन है, के वेक्टर है, ठीक है। ये ब्लू है, ई है, ब्लू ई है, तो एच क्या होगा इस डायरेक्शन के अंदर, वाई बिकॉज क्लास में होता हूं मैं 2 बच्चे अपने साथ खड़े करता हूं, लेकिन नेवर माइंड। ये E क्रॉस H, E, ये E मेरा ब्लू पेन है, E मेरा ब्लू पेन है, oops, E is my blue pen, so E क्रॉस H is my direction in the right pen, ठीक हो गया। अब कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जाता कैसे, अब आपको याद होगा कि ये जो मेरी रेड पेन है ना, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूं, रेड पेन जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेट्स से ऐसे ऐसे कर रहा है, जो फेस है वो तो वेव की डायरेक्शन से प्रोपेगेट, वेव की प्रोपेगेशन डायरेक्शन से क्यूमुलेट हो रहा है ना, राइट ज़हरा? जी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडिंग अस अ पोलराइजेशन एंड फेस इज प्रोवाइडेड बाय के वेक्टर या बीटा वेक्टर, ठीक है, राइट?
और अगर एच को मैं देखूंगा, एच भी तो ये कर रहा है, एच को क्या फेस प्रोवाइड कर रहा है? Wave vector. Wave vector ही प्रोवाइड कर रहा है. So for both E and H, the phase is being provided by this wave vector. E and H उनकी directions different है, जिसको हम pictorially यहाँ पर capture कर रहे हैं. So it means without any hesitation, you should write this as x sine theta I plus z cos theta I. And that's it. Phase will be same, identical for the same k vectors. The phase would be identical. In direction, EI की direction AY में है और ये उसका magnitude है, and HI की direction और magnitude is given by this. ये बात क्लियर है किसी को? ये दो इक्वेशन जो मैंने लिखी हैं, अगर किसी को समझ नहीं आई तो मेरे से बगैर किसी सोचते हुए कि डम क्वेश्चन है या कुछ है, मेरे से अभी पूछ ले. बिकॉज अगर इफ यू अंडरस्टैंड दीज टू इक्वेशंस, देन वी कैन राइट ऑल द इक्वेशंस जो बाकी रह गई हैं. ER, HR और ET, HT की भी हम U मिनट में लिख लेंगे इक्वेशंस. So if anybody has a question or doubt on what we just wrote, just please ask the question and do not think that it's the dumbest question you're going to ask. Yes. Any question on this? सर ये R कौन सा पॉइंट है फिगर पे? Oh, R is just like a position vector. You know, it could be anything. R तो एक, you know, let's say R could be this point कि यहाँ पर wave जब propagate करी उसने कितना phase लिया. R could be here, R could be here, R could be anything. But it is generally in the XZ plane. This plane, XZ plane, right? That's why we wrote R as XAX plus ZA. और obviously आप सोच सकते हो 3D के अंदर R could be a 3D thing. That's okay. Okay. Yes. और कोई सवाल किसी का? ठीक है. और इसमें बड़ी जबरदस्त इंट्यूशन इस तरह है, आप दिमाग में सोचो, इस ब्लू को मैं स्क्विश कर दूं, एंगल को 0 कर दूं, ये मेरा बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस का केस. इमेजिन करो दिमाग में कि मेरा ये अगर मेरा नॉर्मल है, रेड वाला मेरा नॉर्मल है, ब्लू ही मेरा नॉर्मल था, एंड के वेक्टर ये है. अब अगर इस के वेक्टर को मैं स्क्विश कर दूंगा, 0 पे कर दूंगा, ये बिल्कुल वही नॉर्मल इंसिडेंस वाले केसेस बन जाएंगे. एंड यू कैन इमेजिन ऑल दीस विक्टोरियल थिंग इन योर हेड. आई होप सो. ठीक है. अच्छा, that's good enough. Very good. So we have written EI and HI. और मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करवाऊं, HI को मैंने अपने नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से लिख दिया है. मैं HI को इसका कर्ल लेके भी निकाल सकता था E का, तो मेरा HI तब भी निकाल आना था. वो जो कर्ल इक्वेशन डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल B ओवर पार्शियल T, वहां से भी निकल जाना. लेकिन वो क्यों हम इतना इनकन्वीनियंट काम करें जब हम आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं. अच्छा, अब अगले आते हैं हम यहाँ पर टी को भी ओके. अगला आते हैं हम इसके ऊपर बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड के ऊपर. रिफ्लेक्टेड वेव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कुछ बुक्स इसको गलत तरीके से डील करते हैं, जैसे आपका हेट जो है गलत तरीके से डील करता है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक इज डूइंग राइट. व्हाट यू नीड टू डू, पोलराइजेशन को प्रिजर्व करना है. वी आर सॉल्विंग दिस होल प्रॉब्लम फॉर TE मोड, for the TE polarization. So जो reflected है उसकी भी polarization हम उसी डायरेक्शन में लेंगे जो हमने इंसिडेंट में ली थी. ट्रांसमिटेड में भी हम वही लेंगे जो हमने इंसिडेंट में ली थी. एज को हम अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे विद द डायरेक्शन ऑफ K एंड E जो भी हमने ज्यूम किया. ठीक है. सो ER जो है उसको लिखने में भी कोई मसला नहीं है. ER क्या होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम? ER इज इक्वल टू, फिगर के ऊपर आप अपनी देखें, मेरी फिगर छुप गई है. ER इज इक्वल टू EI मैग्नीट्यूड, वो फेस में लिखता हूं अभी, यू नो आई एम गोना लीव दैट इट इज, और उसकी डायरेक्शन AY ही है. ठीक है, क्योंकि वो हमने उसको प्रिजर्व कर लिया. अच्छा, अब इसका फेस क्या होगा? फेस इज डिक्टेटेड बाय योर K vector. Face is dictated by your K vector. So यहां पर इसका K जो है वो क्या होगा, क्योंकि ये मेरा रिजल्टेंट है, एक ये होगा उसका कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट क्या होगा, ये इस डायरेक्शन के अंदर.
सो दिस इज, इसका जो k है, दिस इज k cos, नहीं, k sin थीटा और पॉजिटिव x में है ये, और ये जो है माइनस z में है, माइनस k cos थीटा r। ठीक हो गया। अब उसको उसी तरह हम लिख लेते हैं जो हम लोगों ने पीछे किया था। अब ये मैंने लिख लिया है मेरा k r, और this one becomes k k r। अब क्योंकि मीडियम सेम है, तो ये जो के आर का मैग्नीट्यूड है वो के आर और के आई का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज के जो प्रोपगेशन वेक्टर है वो एक ही मीडियम में है, दोनों भी एक ही मीडियम में है। ऑलराइट, सो व्हाट आई एम गोना कॉल दैट एज, इसको थोड़ा सा बल्कि और आसानी के लिए इसको हम ये काम करते हैं, थोड़ी सी, सॉरी मैं टर्मिनोलॉजी बदल लेता हूं, इसको मैं 1 कहना शुरू करता हूं, मीडियम 1। ऑलराइट, मैं सब कर दूंगा आप लोगों के लिए। अच्छा चलो हम आए रखते हैं, सॉरी, लेट्स कीप इट आए, लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन। ठीक है, सो दिस के आर एंड के आई आर सेम, उनका वो जो वेक्टर है, सो दिस वुड बिकम व्हाट, e माइनस j बीटा i, ठीक है, एंड दिस वुड बिकम ये दोनों जो हैं माइनस, दिस वुड बिकम पॉजिटिव x sin थीटा r माइनस z cos थीटा r। अच्छा, अब यहां पर एक बात मैंने आपको बतानी है और उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब हम नॉर्मल इंसिडेंस में होते थे, we used to write backward wave as e plus j beta z, याद है ना? लेकिन in reality this is a phase thing. In reality what we were doing, जो शायद मैंने उस वक्त बात भी की हो, लेकिन शायद वो फिर in grand scheme of things कुछ मैंने रिपीट बहुत दफा नहीं किया। In reality whenever you're writing a phase, it's always goes with a negative sign, because phase by definition is a delay term. It's a delay term. You always put a negative sign here. So minus j beta, or ye minus z the backward direction, but that's why it becomes positive j beta z. So here what I did, I start with minus j beta I, और अंदर जो मैंने वेक्टर्स लिखे हैं ना, उनके मैंने साइंस प्रिजर्व रखे हैं। जैसे यहां पर मैंने इसको मैंने x sin थीटा पॉजिटिव लिखा है, बिकॉज इट्स एन x पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसको मैंने इसको मैंने x sin थीटा r पॉजिटिव लिखा है, बिकॉज इट्स पॉजिटिव x डायरेक्शन, दिस वन, एंड इसको मैंने नेगेटिव z cos थीटा r लिखा है, बिकॉज द नेगेटिव z डायरेक्शन। और आप ये देखो, बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये, इमेजिन करो ये के आर जो है स्क्विश हो जाएगा, जब ये स्क्विश 0 पे चला जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा और ये मेरा नेगेटिव z होगा, और वो फिर हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, और वही हमारी स्कीम आ जाएगी, पॉजिटिव बैकवर्ड वेव इज अ पॉजिटिव 1। सो लेकिन विक्टोरियल फॉर्म के अंदर हम इसको बगैर सोचे समझे पॉजिटिव नहीं कर सकते रिफ्लेक्टेड को, वी नीड टू राइट इट विक्टोरियली, एंड यू कैन सी अगर ये मेरा थीटा 0 होता है तो दिस टर्म्स बिकम 0, तो ये माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव बनाता है, और हमारा वही नॉर्मल इंसिडेंस जो बैकवर्ड वेव की होती है उसी तरह ही आ जाती है। ठीक हो गया? सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपने ओवरलुक नहीं करना। अच्छा, ये ई आर लिख लिया हमने। अच्छा, अब ई आर मैंने लिख लिया, एच मेरा किस डायरेक्शन के अंदर होगा, वही मेरा द सेम थिंग, I am gonna use my right hand rule that H would be what? H किस डायरेक्शन के अंदर होगा, कौन बताएगा जल्दी से मुझे? Who will tell me? H को मैं कहां करूं, ऊपर ड्रॉ, इधर ऑब्वियसली, यहां तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, या मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ये ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? Who can tell me? सर ऊपर वाला सही है। बिल्कुल सही है,
भाई ऊपर वाला ठीक है, बिकॉज जब आप वही राइट हैंड रूल करोगे, E क्रॉस H करोगे, so this would become this one, so this becomes H R. इसको भी we gonna do the same thing, उसी तरह करेंगे। और अब मैं इसको quickly कर देता हूँ in the interest of time कि this one is your 90 minus theta R, ये मेरा एक है H, ठीक है, और ये मेरा दूसरी, this one is this one is positive, all right, this one is H, this one is this one is H R cos theta R, and this one is H R sin theta R. ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, बिकॉज वो x पॉजिटिव में है और ये z पॉजिटिव में है। सो हम बहुत आराम से वेरी क्विकली I can write this H R as I can write HR as HR cos theta R AX plus HR sin theta R is, ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा है। और इसका E, इसका जो ये क्या होगा, फेस टर्म क्या होगी, एग्जैक्टली वही होगी जो मेरे रिफ्लेक्टेड E की है, बिकॉज दोनों के लिए K वेक्टर एक ही है। ठीक हो गया, वही जहां भी हमने ज़हरा के साथ डिस्कशन एक इंटरेक्टिव की थी। सो दिस वुड बिकम सेम एज बीटा I x beta I as x sin theta R minus z cos theta R, that becomes H R। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर हम एक काम, वो मुझे ऊपर ही कर देना चाहिए था, मैं एक काम ये कर सकता हूं, दिस इज, इसमें से आई कैन टेक जो इंसिडेंट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, इंसिडेंट वन, आई कैन टेक एच आई कॉमन एंड आई कैन मेक इट डिवाइड बाय ईटा वन, जो कि मीडियम वन की है, और ये बन जाता है माइनस कॉस थीटा आई ए एक्स plus sine theta I AZ with the same E minus J beta this one। तो इसके लिए भी मैं यही कर सकता हूं, this would become ER over eta 1, तो मीडियम 1 की इम्पिडेंस है, cos theta R AX plus sine theta R AZ और सेम E minus J beta I, the same thing। ठीक हो गया। सर ये जनरल केसेस है What do you mean by general cases हैं सर? What do you mean by general cases हैं? मतलब कि हमने जो नॉर्मल स्टडी किया था पहले, नॉर्मल इंसिडेंट्स, नहीं, इसमें इसका हमें एक केस है। yes you can think like that, yes, बहुत अच्छा कमेंट है, yes, लेकिन वो नॉर्मल इंसिडेंट्स मैंने आपको पहले मतलब कि इसलिए सिखाया थीटा आई, जी, थीटा आई को मतलब अगर 0 हम सर थीटा आई 0 कर दें तो ये आपके तो नॉर्मल बिल्कुल एग्जैक्टली वही पहले पढ़ी थी, आइडेंटिकल वही आ जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए इसको इस तरह किया कि नॉर्मल इंसिडेंट्स को जरा समझना बड़ा आसान है, उसमें बहुत एप्लीकेशन अच्छा आराम से समझ, ऑब्लिक इंसिडेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन अब ऑब्लिक इंसिडेंट्स की ज्यादा समझ आना शुरू हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट लाइक दैट। ठीक है, यस, वेरी गुड कमेंट जमशेद, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी, अच्छा अब तो जिंदगी बड़ी आसान है, जो अगले दो हमारे वेक्टर रह गए हैं, 6 लिखने हैं हमने, ई आई एच आई, ई आर एच आर एंड ई टी एच टी। सो अगला जो ट्रांसमिटेड फील्ड का वेक्टर है, दैट वुड बिकम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बेसिकली अगर आप देखो, जो इंसिडेंट वेक्टर है और जो ट्रांसमिटेड वेक्टर है उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है मीडियम का। जो आपका ट्रांसमिटेड वेक्टर है, जो उसका जो एज होगा वो भी ऐसा ही होगा, right, नीचे की तरफ, E cross H, and you can, I will leave that for you to figure that out, I think you should be able to figure that out। उसके भी वेक्टर्स एक्चुअली एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे जो हमने इंसिडेंट के लिए लिखे थे, जस्ट सिर्फ उसका जो बीटा है वो 2 मीडियम में आ जाएगा, राइट, सेकंड मीडियम में, ट्रांसमिटेड मीडियम में आ जाएगा।
So we can say this thing. We can say this thing without. आपके सामने आपकी equations होंगी, उनको गौर से देखो. ET जो है, that would become ET E minus J beta. अच्छा चलो इसको ट्रांसमिटेड मीडियम कह देते हैं या बीटा 2 कह देते हैं. बुक क्या कर रही है आपकी इस्तेमाल? तो ओके, एक काम कर, चलो खरने में बीटा 2 कर देते हैं इसको, और बुक आपकी बीटा 1 कर रही है, हम इनको सबको बीटा 1 कर देते हैं. सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं मैसअप कर गया हूँ चीज़ों को, लेकिन आई थिंक जहाँ जहाँ आए हैं उसको मैंने 1 कर दिया. ऑलराइट, डजंट मैटर. अच्छा, so ET J beta 2 and X sin theta T plus Z cos theta T ट्रांसमिटेड जो एंगल है AY डायरेक्शन के अंदर. ये बिल्कुल सारा कुछ वही है जो हमने इंसिडेंट E के लिए लिखा था, बस ये मैंने 2 कर दिया. वो क्यों 2 है? क्योंकि बीटा S उसके जो प्रोपगेशन जो आपका कांस्टेंट है 2 पाई बाय लैम्डा कर लें, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके अंदर आपका मीडियम बदल गया, एंड यू विल हैव दिस वन. ठीक है, एंड HT इज इक्वल टू द सेम वे ET ओवर इन सेकंड मीडियम माइनस cos theta T AX प्लस sin theta T AZ E माइनस J बीटा 2, एग्जैक्टली वही जो हमने उसके लिए लिखा था. ठीक हो गया. सो दैट बिकम्स, ये हमने 6 के 6 वेक्टर्स हमने लिख लिए. अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा आपके लिए क्विकली रिकैप कर देता हूं. इंपॉर्टेंट थिंग्स वर दैट यू अंडरस्टूड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड यू अंडरस्टूड कि हमने E को रेफरेंस बनाया है और हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के लिए सॉल्व करें जब E ऐसा है. ठीक है, जब E एक जैसा होगा हम उसको TM कहेंगे, उसको बाद में सॉल्व करेंगे. जैसे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक केस, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वेक्टर है दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, फेज एंड डायरेक्शन. फेज ये लॉसलेस मीडियम अगर आप कंसीडर करें तो इट वुड बी डिक्टेटेड बाय द K वेक्टर या प्रोपगेशन वेक्टर से डिक्टेट होगा. एंड रेस्ट जो उनके मैग्नीट्यूड, जो उनकी डायरेक्शंस हैं, वी कैन इजीली सॉल्व देम बाय रिजॉल्विंग दीज वेक्टर्स जस्ट इन अ यूजुअल हाई स्कूल वे व्हिच यू नो रियली वेल. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये हमने 6 के 6 वेक्टर लिख लिए. आपकी कॉपी के ऊपर सारे मौजूद होंगे जो आप लोगों ने लिख लिए 6 के 6 वेक्टर. अब मैं इसके ऊपर लगाने लगा हूं बाउंड्री कंडीशन. ठीक है, लेट्स से बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन क्या है? तो बाउंड्री कंडीशन इज दैट टेंजेंशियल E and H are continuous. ठीक है, लॉसलेस मीडियम है, J भी 0 है, J is 0 and rho is also 0, so you can easily say that E and H are tangential, E and H are continuous, which means that EI at Z is equal to 0, because बाउंड्री कंडीशन है हमारा. देखो ये जो इंटरफेस है ये Z is equal to 0 पे डिफाइंड है. सो लेट्स से Z is equal to 0 के ऊपर EI Z is equal to 0 प्लस उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड वेव भी है, जस्ट लाइक नॉर्मल केस में जो हमने किया था. Z is equal to 0 has to be equal to the transmitted जो मेरा है at Z is equal to 0. ठीक है, और सिमिलरली my H की बाउंड्री कंडीशन भी सेम रहेगी. that would be HI Z is equal to 0 plus HR Z is equal to 0 is equal to HT Z is equal to 0. ये मेरी बाउंड्री कंडीशंस है. अब ये बाउंड्री कंडीशन के ऊपर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं. रिमेंबर मेरा गोल है, आई वांट टू फिगर आउट व्हाट आर द transmission and reflection angles and what are the and how much the electromagnetic wave is reflected and transmitted with respect to incident wave. That means that I am interested in the reflection coefficient, I am interested in the transmission coefficient, I am interested what is theta r, and I am interested what is theta t, because ये सारे मेरे electromagnetic field के हिस्से हैं.
ठीक है, यहां पर आप देख सकते सबके सब हिस्से हैं. सो वंस आई लेट्स लुक ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप अपनी इक्वेशंस को और से देखो जो आपने अपनी कॉपी पे लिखी होंगी साथ साथ, जब मैं z इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो जितनी भी z वाली टर्म्स हैं दे विल ऑल बी गॉन. सो आई वुड बी लेफ्ट विद e minus j beta 1 sine theta I x plus ei e minus j beta 1 sine theta r x is equal to et e minus j beta 2 sin थीटा टी एक्स. मैं यहाँ पे 15 सेकंड का पॉज लेता हूं. अब देखो, वेरीफाई करो अपनी इक्वेशंस के अंदर. ये लेट्स से मैं आपके साथ ई आई को देख लेता हूं. ई आई के अंदर जब मैंने z इक्वल टू 0 पुट किया तो दिस गोज अवे, सो ओनली लेफ्ट इज दिस वन. दैट्स व्हाट आई रोट. सो ई आर के अंदर दिस गोज away, only left is what this one, and et के अंदर this phase term goes away and the only thing which left is this one, and that's what I wrote. अच्छा, अब यहां पर एक मैथमेटिकल बात है, बड़ी सीधी सीधी मैथमेटिकल बात है. वो ये है कि ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसके अंदर ये ई आई और ये ई आर और ये ई टी तो ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट, राइट. एंड यहां पर इसका जो एक्सपोनेंशियल है ये भी तीनों डिफरेंट हैं. और मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो मेरी ये तीसरी टर्म आएगी. अब एज एन एग्जाम्पल, एक मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूं, यानी कि हमेशा ये ट्रू होगा. एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं लेट्स से एट x इज इक्वल टू 0 पर मैं चेक करूं, राइट, x इक्वल टू 0. अब ये देखो x क्या है मेरा, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. यू नो दिस कुड बी x इज इक्वल टू 0, इसके बाद ऊपर x बढ़ रहा है. लेट्स से एट x इक्वल टू 0 के ऊपर मैं चेक करूं तो ये बड़े आराम से दिस इज इक्वल टू ई आई प्लस ई आर इज इक्वल टू ई टी. दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ना वो ये है कि लेट्स से अगर x की नॉन जीरो वैल्यू है तो क्या होगा, ये सारे एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, एक्सपोनेंशियल्स, ये सब एक्सपोनेंशियल्स डिफरेंट है. इसको मैं कैसे बराबर करूं? इम्पॉसिबल. दिस इज मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी. कैन यू सी दैट अगर x नॉन जीरो है, ये तीनों, क्योंकि बीटा 2 sin थीटा t डिफरेंट, बीटा 1 sin थीटा r डिफरेंट, बीटा 1 sin थीटा i डिफरेंट, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते. इसका मतलब है this is impossible. The only way this is possible is that when beta 1 sin theta I is equal to beta 1 sin theta r is equal to beta 2 sin theta t. The only way it is possible is this one, कि ये condition true होगी तो ये इक्वेशन ट्रू होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि दिस कंडीशन हैज टू बी ट्रू in order to have that condition true. And remember, this tangential E continuity came from Maxwell's equations. So this is a very, very true equation which we just wrote. और यहां से वो चीज निकल रही है जो आप लोग बचपन से दूसरी जमात से पढ़ने आ रहे हो. कौन बताएगा क्या चीज नजर आ रही है जो दूसरी जमात में पढ़ रहे हो आप लोग? पढ़ नहीं रहे, पढ़ते थे. कौन बताएगा मुझे क्या नजर आ रहा है? कि अगर सो गए हो या Sir, Snell's law. स्नेल्स लॉ से भी नहीं, स्नेल्स लॉ नहीं दूसरी जमात में पढ़ते आप, कुछ और पढ़ते हैं दूसरी जमात में. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Yes, absolutely right. Because ये theta I is equal to theta R. This is coming from Maxwell's equation. और actually in reality ये आया भी वहीं से था. This is coming from Maxwell's equation that theta I is equal to theta R. जो क्योंकि बीटा 1 और बीटा 1 सेम है तो इसका मतलब थीटा आई हैज टू बी इक्वल टू थीटा आर. सो इसका मतलब है जो हमारी फिगर में जो हम लोग अपना व्हाट वी वांट टू डिटरमिन दीस एंगल्स, सो वी फिगर आउट थीटा आर इज इक्वल टू थीटा आई. और दूसरी चीज जो आपने बताई थी, यस,
दूसरी चीज है स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ इन रियलिटी इज दिस गाय, बीटा 1 साइन थीटा I इज इक्वल टू बीटा 2 साइन थीटा t. कौन यहां पर विजुअलाइज कर सकता है फ्रॉम दिस इक्वेशन जो हमारा क्लासिकल स्नेल्स लॉ है, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला. किसको नजर आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़े आराम से मुझे निकल आएगा यहां से? हु कैन सी दैट? Yes, can you see that? किसको नजर आ रहा है बताओ? I will go over few, meaning not more than 5 minutes. I just want to finish my story here. Apologize for that. मैं अपने allotted time से थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, but I hope you will forgive me for that. और चेयर को ईमेल नहीं लिखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, right? Laws of reflection, or this is your Snell's law, and you can see this thing that ये किसके इक्वल है? बीटा नॉट इसके इक्वल या n1 बीटा नॉट. याद आया? सो यू कैन सी दिस थिंग, और ये इक्वल है n2 बीटा नॉट. आप लोगों ने देखा हुआ है पहले. सो दिस कैंसल्स आउट. सो दिस इज योर classical Snell's law, right? n2 sin theta t. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशंस हमने ऊपर लिखी थी, ये ट्रांसमिटेड ET एंड HT, इसमें जो एंगल थीटा t है ये आप बगैर सोचे समझे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो गिवन होगा फॉर ए प्रॉब्लम, यू नो, फॉर एनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एंड सॉल्व, यू कैन फिगर आउट थीटा t बाय स्नेल्स लॉ. ठीक है? बीटा 2 फिगर आउट फ्रॉम योर इक्वेशंस, from your equations for the medium. The only thing which is still left, that how much this strength is being forward and how much is reflected, which is your reflection and transmission coefficients. ठीक हो गया? So मेरा ख्याल है अगर मैंने इसको बातचीत की तो I will go 10 more minutes, but I think I will stop here because there's a nice time to stop. और अगली क्लास के अंदर I will talk about those few other things and puzzles here. G, any question on this? So I'm gonna stop. Sir, I have a question. Yes, go ahead. Sir, can you go to the diagram Yes, in this chart? yes. Sir, I think here we assume that the polarization of the electric field remains the same even after the reflection. So, Yeah. Is it possible that this can change? Well, okay, excellent question. Do you recall a resultant polarization vector is represented by two components, correct? A horizontal, एक वो जो एक जिसको हम कहते थे आपको, जो हम क्लासिकल, ओके, मैंने इस बात को बाद में करना था, लेकिन अगर आपने अभी सवाल पूछे तो लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. सो यू नो दैट अगर एक वेक्टर होगा पोलराइजेशन E का, so it can be resolved into these two components, right? You know, let's call that as y and x component. ऐसा ही है ना? ज़हरा बोल रही है ना? Right? जी sir. Okay, you got that, right? अब मसला ये है कि इन दोनों में से कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट बदल जाएगा तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बदल जाएगा, करेक्ट? Yes. ओके, नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि ये अकेला वेक्टर है, ठीक है, अकेला वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसकी पोलराइजेशन कैसे बदल सकती है? उसकी एज लॉन्ग एज द मीडियम इज आइसोट्रोपिक, इसकी पोलराइजेशन बदल सकती है एक रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन, एक, यानी कि यस, ये जरूर हो सकता है कि ये फ्लिप हो जाए, यानी नीचे चला जाए ऊपर की जगह, लेकिन इसकी पोलराइजेशन वर्टिकल ही रहेगी. How you can, its polarization will not change as long as you are in isotropic medium. Its polarization will not change अगर ये अकेला कंपोनेंट है, ठीक है? पोलराइजेशन बदलेगी कब? जब ये दो कंपोनेंट्स के इंटरप्ले में कोई मैग्नीट्यूड में बदल आ जाए या फेस डिफरेंस आ जाए तो ये बदल जाएगी. अब अगर अकेला कंपोनेंट होगा तो उसका फेस डिफरेंस का मीनिंग भी खत्म हो जाता है, और अगर उसका मैग्नीट्यूड कम भी होता है, लेट्स से आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो कोई बात नहीं है, तो वही पोलराइजेशन.
अब यहां पर पॉइंट ये आता है, एंड आई विल अगेन एलेबोरेट दैट लेटर ऑन, ये जो टीई हमने काम किया है ना बेसिकली, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई अब जेनेरिक नहीं रहे, ये टीई और टीएम विल एक्ट लाइक द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए जेनेरिक पोलराइजेशन. So what we are trying to do here, that we're trying to solve these reflection transmission coefficient for one component at a time. And later on, we can think that a generic polarization is sum of TE plus TM components. TE plus TM means that it is a sum of, in your usual terms, horizontal and vertical components. So जब TE TM का आपस में मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तब पोलराइजेशन बदल जाएगा. Does that make sense? ये क्लटर हो गया. I'm Clutter. sorry, it makes sense. Yeah, clutter. It's okay if it's cluttery. We will address that in the next class or so. क्योंकि मैंने इस पॉइंट के बाद मजीद आना, जब मैं टीएम की बात करूंगा मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से दोबारा एलैबोरेट करूंगा. Okay, I'm gonna stop my recording and you can still hang out with me guys for any further questions. So जो देख रहे हैं, I apologize, हम थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, but that's okay. कुछ क्लासों में मैंने आपको जल्दी भी छोड़ा हुआ है. So all right guys, अपना ख्याल रखें. I will see you on Wednesday.